अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। MS क्रिएटिव स्कूल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सालाना प्रोग्राम अखलाक शो का अहतमाम ARK कॉलेज मैदान में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ तलबा की ख़िरात कलाम पाक से हुआ। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात में अपनी तालीमी महारत और अखलाकियात का भरपूर मुज़ाहरा किया। इस प्रोग्राम में जदीद टेक्नोलॉजी और जदीदी तर्ज़ तालीम का मुज़ाहरा तो हुआ, साथ ही साथ अखलाकियात और दीनी उलूम का भी तलबा ने हैरत अंगेज़ मुज़ाहरा किया। नन्हे तलबा और हाई स्कूल तलबा ने दम बखुद कर देने वाले मुज़ाहरे किए। मौलाना सनाउल्लाह खान कासमी ने सभी मेहमानों और औलिया तलबा का इस्तकबाल करते हुए MS स्कूल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। मौलाना साजिद अहमद फलाही, मोहम्मद साजिद, डायरेक्टर MS एजुकेशनल एकेडमी हैदराबाद, मौलाना शोहेब कासमी ने अपने खिताबात में MS क्रिएटिव स्कूल महबूब नगर के तलबा के मुज़ाहरों की भरपूर सिताइश की और कहा कि स्कूल के असातिज़ा बिलखुसूस डायरेक्टर स्कूल मौलाना सनाउल्लाह खान कासमी की अनथिक मेहनत व जिद्दोजहद का नतीजा है कि स्कूल के तलबा अपनी तालीमी व दीनी उलूम में महारत का इस कदर उम्दा मुज़ाहरा कर रहे हैं। उन्होंने औलिया तलबा से भी ख्वाहिश की है कि वो भी अपने होनहार नौनिहालों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि किसी तालिब इल्म को निखारने में सिर्फ एक स्कूल कारआमद नहीं होता बल्कि औलिया तलबा को भी अपना हिस्सा अदा करना होगा। इस प्रोग्राम में दीगर मेहमान शोएब अंसारी अल अंसार एजुकेशनल एकेडमी के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम के इंतज़ामात में मौलाना मसीहुल्लाह खान, मौलाना वलीउल्लाह खान, अब्दुर्रहमान खान, मौलाना इफ्तिखार साहब व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूले कौनैन सरकारे दो सल्लल्लाहु अलैहि शाहिदुम मुहम्मद आमीन, describing him as a shining star. Each one of you is a caretaker and is responsible for those under his care. Fear Allah and treat your children fairly and equally. If anyone cares for 3 or 2 daughters, discipline them, get them married and get good to them. He will go to paradise. You and your wealth belongs to your father. Whoever believes in Allah, the day of judgment should talk what is good or keep quiet. Show mercy to those who are on the earth, and the one who is above the paradise. To stand before you today. My name is Jibran Usman Zubedi and I am from grade 5. I believe that every individual, we must know 12 facts about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca in 570 AD.
inspiration, and from towering mountains to the flowing of river, from the rustling leaf to the singing birds. Every part of the nature is Allah's greatness. But today, as we admire its beauty, we must reflect on our responsibility. Today I am honored to speak about the greatest treasure, forest. I am the forest. I take in your pollution and give you clean air, purify your water and protect your shores. Yet you continue to cut me down, releasing carbon into the air, heating this planet, while some of you stand with me, most of you turn your backs on me. I am Ifra Mohammadi from class 7. Today I have the privilege of speaking about a topic that lies in the heart of our faith. Faith in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faith, Iman, in Islam is a fundamental and vital concept that reflects a person's complete belief and trust in the performance. This passion and devotion in their voices brought out the deep emotions of this nasheed, reminding us all the love and longing of Holy Kaaba. Their harmony and sincerity made this performance even more special. May Allah bless these young girls. Sallallahu Alaihi Wasallam is highly encouraged in Islam, and it is considered one of the most virtuous deeds. It means asking Allah.
نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں تمہیں کی عظمت کے ترانے گلی گلی میں نگر نگر دمن دمن میں ہے ان کا شہرا چمن چمن میں ہے ان کا چرچا دمن دمن میں ہے ان کا شہرا ہے ان کی مدحت ملک ملک میں ہے ان کے تھوڑا سا بیٹھ جائیں لیڈیز جو بھی آپ ٹھہرے ہوئے یعنی Environmental issues that affect not only our nature but also our own future. Humanity. Just as the stars in the night sky hold mysteries yet to be discovered, so does the future of our world. These are but a few of the challenges that await us in the future. Overpopulation, climate change, technological unemployment, global health crisis, cyber... جگمگاتے گوہر آ مل کر چنے مسکرا کر پڑھے مسکرا کر سنے کون سی بات پر کس جگہ کس گھڑی مسکرائے نبی مسکرائے نبی جگمگاتے گوہر آ مل کر چنے. Fundamental for Muslims. As with actions, words, the Sunnah provide guidance in all life aspects. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم and determinant impact it's having on our local businesses, our artisans, and our very economic fabric. A bustling marketplace in colonial India, runners of the garden, children play, and British soldiers patrol the area. Characters: Gandhi, a young passionate Indian man. Lata, a strong-willed woman determined to fight for this freedom. Mr. Kalam, a respected elder in the community, cautious but supportive. Constable, a stern British officer enforcing the law. Villagers, a group of ordinary people eager to join the movement. Scene 1. پھسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ کرتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی لہروں سے. Warahmatullahi wabarakatuh. I am Arshia Begum. Standing beside me is my co-speaker Shifa Zamuna.
It is an honor for us to stand before you and talk about a very important topic, following the sunnahs of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The sunnah refers to the practice, teachings and the actions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serving as a guide.
ذلت کے بھور میں الجھے ہیں ہم پار کرنا بھول گئے عزت سے جینا بھول گئے عزت سے مرنا بھول گئے ذلت کے بھور میں الجھے ہیں ہم پار کرنا بھول گئے عزت سے جینا بھول گئے عزت سے مرنا بھول گئے ہنر کے غازے سے اسلام نے جو بخشا ہم کو اس ہنر کے غازے سے غیروں کو نکھارا تھا لیکن عزت سے جینا بھول ہمیں تو لے ڈوبا ہم شیر بھی تھے شاہین بھی تھے پروان ہمیں تو لے ڈوبا ہر باطل سے ڈر جاتے ہیں یہ جو انداز دی ہر بزم سے ان کی وہ گزرے ہم جہاں سے گزرنا بھول گئے Wealthy businesswoman who was impressed by his honesty. At the age of 28, his first child, Qasim alayhi salam, was born, but passed away young. At the age of 30, his second child, Zainab radiyallahu ta'ala anha, was born. At the age of 33, his third child, Ruqayyah radiyallahu ta'ala anha, was born. He was gathered in Mecca, and he lost his wife, Khadija radiyallahu ta'ala anha. At the age of 50, Israel. At the age of 52, he received his first agreement of Aqaba and also the second agreement. And the assassination attempt on हमदर्दी करना और मुसीबत ज़दा लोगों को सहारा देने पर औरों को तैयार करना। कुरान पाक में रहमत की अहमियत इस आयत की चाहे वो लोगों के साथ मेहरबानी हो या गलतियों को माफ करना हो और माफी को इंतकाम पर फौकियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कई मौके पर माफी और सब्र को सख्ती पर तरजीह दी है। हम सफर ज़िक़दर दोस्तों करा जिंदगी का सफर दोस्तों हमेशा लिए हाथ में हाथ हम रहे एक साथ उम्र भर दोस्तों वफ़ाओं के मशअल जला कर चले हर एक ज़ख्म पर मुस्कुरा कर चले सितमगर तुम्हें पानी दे इस कदर भुला कर चलो हम तो फिर दोस्तों वफ़ाओं के बदले मिले गर जफ़ा तुम्हें घर मिले हम सफ़र बेवफ़ा जफ़ाओं से उनकी शिकस्त न हो ज़ख्म करो तुम सब्र दोस्तों हम सफ़र ज़िक़दर दोस्तों करा जिंदगी का सफर दोस्तों हमेशा लिए हाथ में है हकीकत यही है नबी आपको मैंने देखा नहीं है ना दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं ना साथी सफर का बन सका मैं ना आका की आवाज तक सुन सका मैं ना हिजरत की वसल्लम से मेरी अकीदत और दिली लगाव
हसीन नजराना है। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उड़ता, काश मक्का की मैं फिजा होता। हिजरतों में पड़ा होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता। The only known planet that can sustain life. It's been sustaining life for over 3 billion years and humans for about 6 million years. When seen from space, our planet looks calm, serene, mighty and magnificent, focused on rotating and revolving around the sun. But when you zoom in, it is a story altogether. Firstly, humans overpopulated the planet. We understand that every life is precious, but there are 8 billion of us on Earth. Experts say that we are way too many more than the planet can sustainably carry. Many say that the planet has a capacity of 9 to 10 billion people, and we are closer to hitting this mark. सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन, सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन। मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है। वो देश हमारा हिंदुस्तान, जीजा से प्यारा हिंदुस्तान, आँखों का तारा हिंदुस्तान, ये सबसे न्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो मंसूब। Nazia Fatima of PP2, please come to the stage. Nazia Fatima, PP2. Parents' hard work and an unwavering commitment to learning. It requires determination, discipline, and a passion. Class 9, daughter of Sheikh Kazimuddin. Your ability to balance the best is truly inspiring. You are not only acting an example of hard work and Mr. Shoaib sir, Khan Kasmi sir, National President Jamaat-e-Ulama-e Hind. So ladies and gentlemen, I request everyone please give a big round of applause for their presence here and for the giving their precious time. So
So cheer up as they are felicitated. सारे तेलंगाना में कई स्कूल्स इसके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है, हम लोगों ने हमारी तरफ से हमारे बच्चों को ये प्रिपरेशन के लिए आज यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोग आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट बैच 10th क्लास का है, इनके लिए स्पेशल दुआ सब लोग करिए, ताकि ना ये लोग केवल महबूब नगर में बल्कि तेलंगाना की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम करे, क्योंकि आप लोगों की जो 12-13 साल की जो मेहनतें हैं वो रिटर्न आने का वक्त है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ये हम तमाम बच्चों के जो भी 10th क्लास बॉयज एंड गर्ल्स है, इन लोगों के लिए खुसूसी दुआ करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस महबूब नगर में इस प्रोग्राम के अंदर आना हुआ और ख़ास तौर पे ये MS स्कूल का जो प्रोग्राम था, इसमें बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत और उनका हौसला और उनका तमाम चीज़ों देखने बाद में अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान को ऐसे इदारों की शदीद ज़रूरत है जिन इदारों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मॉडर्न तालीम का इंतज़ाम है, साथ साथ दीनी माहौल के अंदर अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आने वाली वक्तों के अंदर देश के लिए, दुनिया के लिए काम करने वाले होंगे और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले होंगे। इस वक्त मुसलमानों को ख़ास तौर पर ऐसे इदारों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि वो जिनकी बुनियाद ऐसे इदारों में बन जाएगी वही बच्चे आगे जाके महफूज रहेंगे, वरना हालात पूरी दुनिया के ऐसे होते जा रहे हैं। हर जगह लोग बच्चों से परेशान हैं, नशा, ड्रग्स और तमाम तरीक़े की बीमारियाँ बच्चों में घर कर जाती हैं। जब बच्चे में दीन होगा वो इन चीज़ों से महफूज रहेगा। इसलिए मेरी पूरे इलाके के लोगों से गुजारिश है, ऐसे इदारों के अंदर ख़ास तौर पर अपने बच्चों को भेजें और ये इदारे ज़्यादा से ज़्यादा कायम करें। ऐसे इदारे को कायम करने वालों के साथ खड़े हों, ताकि ऐसे इदारे पूरे स्टेटों के अंदर फैलें और मुसलमानों की आने वाली नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सबसे पहले ठीक है, शुरू कर दूं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहूँगा पूरे ARK कॉलेज और सिराजुल उलूम महबूब नगर में जिस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, और MS एकेडमी पूरी टीम को, डायरेक्टर सनाउल्लाह खान साहब और उनका पूरा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पार्टिसिपेंट्स, जिस तरीके से आज के परफॉर्मेंसेस यहाँ पे रहे वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और मैं इस इलाके से तेलंगाना के महबूब नगर के लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो इदारा यहाँ पर आप अपने बच्चों को जो इस इदारे के अंदर जो भेज रहे हैं, वाकई में आप अपने यंग माइंड्स को बहुत अच्छी जगह पे पॉलिश करने के लिए आपने रखा हुआ है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से कि आने वाले वक्त में आपके बच्चे पढ़ लिख कर खूब अच्छे ओहदे पर जाएँ, खूब अच्छी जगह पर जाएँ। इसी दुआ के साथ ऑल द बेस्ट आप सबको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे महबूब नगर के MS एकेडमी में एज ए चीफ गेस्ट उनके एनुअल फंक्शन में आने का मौका मिला। मैंने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टैलेंट को यहाँ पर शोकेस किया। वाक़ईतन इस स्कूल में बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। इनके फ़िज़िकल कोशंट पर भी काम किया जा रहा है, इनके इंटेलेक्चुअल कोशंट पर भी काम किया जा रहा है, इनके इमोशनल कोशंट पर भी काम किया जा रहा है और इनके स्पिरिचुअल कोशंट पर भी काम किया जा रहा है। मैंने इनके परफॉर्मेंसेस को देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज़ को यहाँ पर बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को, डायरेक्टर सनाउल्लाह खान साहब को और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा और मुबारकबाद दूंगा कि इतने बेहतरीन तरीके से वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं
तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।